हेलो टू एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र बनिया। एक बार और आप लोगों के बीच में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक शॉर्ट नोट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो आवर टुडेज टॉपिक इज acceptance of deposit. So this question can be asked for your exam. Earlier it was asking for 5 marks, but according to new syllabus, if it will be asked in short notes, so it can be asked for 4 marks. So let's start. Acceptance of deposit. पहले भी हम लोग ने डिपॉजिट का नाम सुना होगा। डिपॉजिट्स ये जो वर्ड है ये मोस्टली हम लोग ने बैंक में सुना है, बिकॉज बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द account holders or from the investor also. But now public company also has option to accept the deposit from the general public. So deposit is also become one of the sources for the public company to collect capital for their business. So today we'll learn about it. So let's start with the meaning. Company may raise borrowed capital by accepting deposit from the public. Company has option. Company can also borrow or collecting this kind of capital from the general public in the form of deposit only. Company deposits are given by the general public or the investor to the companies under certain terms and conditions acceptable to the both the parties. Means company can accept or collect this capital from the general public or the investors, but there are something terms and conditions in between both the parties, means from between the company and as well as between the depositor or deposit holder, we can say. Company deposits are useful for companies only for meeting a temporary financial needs. कंपनी जो डिपॉजिट कलेक्ट करती है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ये डिपॉजिट का पैसा कलेक्ट करती है, और उसके जो टेम्परेरी फाइनेंशियल नीड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए, उसी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए डिपॉजिट्स को पर्पसली क्या किया जाता है, रेज किया जाता है बाय द कंपनी. सच डिपॉजिट्स आर सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स and given for a short period of time, that is up to 3 years. Yes, these deposits are similar as how the banks is accepting deposit from the depositors. But यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डिपॉजिट होता है कंपनी में वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. अगर बात करें तो अप टू मैक्सिमम 3 years के लिए होता है. ओके, सो company can accept deposit from the general public up to maximum 3 years only, and it can be collected by the company for short period of time. Company issue deposit receipt, that is in short called DRS, to investor and pay regular interest to them. Okay, कंपनी जब डिपॉजिट का पैसा कलेक्ट करती है डिपॉजिटर से तो उनको एक एविडेंस देती है which is called deposit receipt. How the company is giving certificate to shareholders, debenture holders, bonds holder, but company issuing deposit receipt to the depositor, which is also one kind of evidence for the depositor, and it's also help to get the interest from the company. So deposit receipt जो होता है वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट लेने में उसकी मदद करता है, और वो ये भी प्रेजेंट करता है कि वो किस कंपनी में अपने पैसे को डिपॉजिट किया है. लेट्स गो अहेड. Only public company can invite or accept public deposit from the public, but a private company cannot invite or accept public deposit. Yes, it means only public company has right to collect or raise or accept deposit from the general public. प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा कलेक्ट कर सके. ये राइट सिर्फ किसके पास है, पब्लिक कंपनी के पास है. Various restrictions are imposed on companies in regard to accept deposits. कंपनी के ऊपर ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया है इंडियन कंपनीज एक्ट ने, जहां पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. Without following it,
company cannot collect deposit from the general public. The purpose is to protect the interest of small investors. And why government or the Indian Companies Act impose this kind of restriction on the company? Because most of the people, or we can say most of the small investors, are likely to invest their capital or investment in the form of deposit only into the company. सो गवर्नमेंट एंड कंपनीज एक्ट इन सारी चीजों को बहुत ही कंसर्न करता है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का इसमें लॉस ना हो. इसलिए जो इसका मेन पर्पस है कि व्हाई ओनली पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज ओनली टू प्रोटेक्ट द स्मॉल इन्वेस्टर्स. लेट्स गो अहेड. लेट्स सी द डेफिनेशन. As per section 2 subsection 31 of Companies Act 2013, deposits include any receipt of money by of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. देखते हैं डिपॉजिट क्या बोलता है. कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय ऑफ डिपॉजिट, अगर वो डिपॉजिट के रूप में लिया गया है तो, और लोन और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ द कंपनी, चाहे वो डिपॉजिट के रूप में लिया गया है, वो क्या वो लोन के रूप में लिया गया है या किसी और तरीके से लिया गया है, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब वो सारे अमाउंट, चाहे वो डिपॉजिट से कलेक्ट किए गए हो चाहे वो लोन से कलेक्ट किए गए हैं, वो डिपॉजिट के अंदर आते हैं अगर वो इन सारे सोर्सेस से पैसे कलेक्ट किए गए हैं तो. लेकिन कुछ गाइडलाइन आरबीआई ने इशू की है, कुछ कैटेगरीज आरबीआई ने बनाई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री. उन्होंने अगर जो स्पेसिफिकेशंस किया है, उन्होंने जिन जिन सोर्सेस से जो सोर्सेस से उन्होंने बोला है कि इन सोर्सेस से पैसे आएंगे तो उनको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो वो डिपॉजिट के पार्ट्स नहीं माने जाएंगे. सो डिपॉजिट के रूप में कोई पैसा कलेक्ट किया हो लोन के काइंड्स में कलेक्ट किया गया, नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट ओनली. बट देयर आर समथिंग विच इज ऑलरेडी मेड बाय सम कैटेगरीज बाय द आरबीआई. आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस दिए, आरबीआई ने जो कैटेगरीज ऑलरेडी मेंशन किया, अगर वो वे से कंपनी पैसा कलेक्ट करती है तो वो डिपॉजिट या लोन के कैटेगरी में नहीं आएगा. लेट्स गो टू अहेड. However, deposit does not include the following. Now नीचे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आपने पैसे यहां से कलेक्ट किया है तो ये डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होंगे. मीन्स द फॉलोइंग सोर्सेज, इफ यू कलेक्टेड द डिपॉजिट from the following sources, then it will not come under the deposit category. Let's see which one it is one by one. So first one is any amount received from the central government or the state government. If any amount, any subsidiaries, any donation is given by the government, either it is central government or state government, then company cannot include or company cannot say this is deposit amount. Second is any amount received as loan from any banking company. For example, if company collected capital in the form of deposit from any financial institution or the banking company, then company has company don't have right to include this kind of capital, this kind of sources of amount in deposit, because वो लोन का कैपिटल तो आप उसको डिपॉजिट में कलेक्ट इंक्लूड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक. यस, कंपनी कैन आल्सो नॉट इंक्लूड दिस काइंड ऑफ अमाउंट इन डिपॉजिट्स इफ कंपनी गेट द अमाउंट फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल बैंक. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी ने हमारी कंपनी को दिया या किसी दूसरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को दिया और उसको मेंशन नहीं किया गया कि डिपॉजिट का अमाउंट है, तो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट.
any amount raised by issuing commercial paper. Yes, every company has commercial paper, and from commercial paper company can collect amount for their company where they can complete their financial needs. और अगर कंपनी ने कमर्शियल पेपर रख करके अगर पैसे कलेक्ट किए हैं तो कंपनी उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। कंपनी ने अगर बॉन्ड्स इश्यू करके पैसे कलेक्ट किए हैं तो बॉन्ड्स के पैसे भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट। इफ समवन गिवन अमाउंट इन सम काइंड ऑफ ट्रस्ट then company cannot include in deposits. किसी ने आपको ट्रस्ट पे दिया है, विश्वास पे दिया, तो आप उसको डिपॉजिट के तौर पे या डिपॉजिट के अमाउंट में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी ने अगर शेयर्स या डिबेंचर मार्केट में इश्यू करके जो पैसे कलेक्ट किए उस पैसे को भी कंपनी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं कर सकती, because वो पैसे shares and debenture को issue करके collect किए गए। So this kind of capital will also not going to include in deposits. So these all are the points. If company collected any capital from these sources, so company cannot include in deposit. So hope so guys, lecture आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।